Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial, and today we are going to continue our phylum Platyhelminthes. So in the first lecture of Platyhelminthes, we have discussed about the general characteristic feature of Platyhelminthes, that Platyhelminthes are generally known as flatworms. They are the first which are bilaterally symmetrical, then they got a triploblastic body wall, their mesoderm was solid, they are having phloem cell for excretion, their nervous system was that of ladder type. In today's lecture, I am going to start about the member of Platyhelminthes, that is Fasciola hepatica, which is commonly known as liver fluke. So I will be telling you about the structure of liver fluke along with the life cycle of liver fluke, and then I will be adding certain more fluke which are supposed to infect human being as well. So starting from liver fluke, the scientific name of liver fluke is Fasciola hepatica. It is commonly known as hepatica as it occurs in the liver and bile duct region of the host. So Fasciola hepatica is commonly known as liver fluke. It belongs to phylum Platyhelminthes, and the class of Platyhelminthes to which Fasciola hepatica belong is Trematoda. So Fasciola hepatica, it belongs to class Trematoda of Platyhelminthes, and I will be telling you the general characteristic features of class Trematoda in the classification section. Talking about liver fluke is a digenetic. Talking about the general features, first let us discuss the general features and structure of liver fluke, and then I will be talking about the life cycle. It is a digenetic endoparasite, and we have already discussed in our previous lecture what is the meaning of term digenetic. तो डाइजेनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल को दो अलग अलग होस्ट में कंप्लीट करे. इसका एक होस्ट, अगर मैं फैसियोला हेपेटिका की बात करूं, वन होस्ट इज शिप और गोट, दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी होस्ट, एंड सेकेंडरी होस्ट फॉर फैसियोला हेपेटिका इज स्नेल. प्राइमरी होस्ट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो एक्वेटिक होता है. स्नेल फ्रॉम द जीनस प्लेनोर्बिस और फ्रॉम द जीनस लैमनिया और फ्रॉम द जीनस ब्यूलिनस. these are the common secondary host of Fasciola hepatica. So the primary host is sheep and goat, and secondary host is snail. It is worth mentioning here that primary host is a terrestrial animal and secondary host is an aquatic animal. And this parasite, it causes a disease which we call liver rot. And liver rot is caused in the body of primary host, not secondary host. So secondary host does not suffer from any disease by that infection. Moreover, the mode of nutrition, it is generally absorptive. It absorbs nutrition by body surface, or it is ingestive. It used to ingest food with the help of mouth. I will be telling you mouth in their case is used for both things, for ingestion as well as for egestion. हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर अभी भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान वाला है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही मिलेगा वहां पर. उनके इसके पास एक्सक्रीशन के लिए दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक सेल विच वी कॉल फ्लेम सेल. अगर इसके हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिंथेस में पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं. I told you about hooks, I told you about suckers.
इनके पास दो सकर्स होते हैं। एक सकर होता है ऑन द ओरल साइड ऑफ बॉडी, मैंने ओरल एंड एबोरल एंड दोनों बता रखे हैं आपको, और दूसरा सकर होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। सो देयर बॉडी वुड बी कैरेक्टराइज, वो चलो स्ट्रक्चर में आई विल बी इन्वॉल्विंग दैट। राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग प्लीज मेंशन समथिंग अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। वैसे तो आपको बताया गया है कि जितने भी प्लेटी हेलमिंथेस हैं सारे ही हर्माफ्रोडाइट है विद द एक्सेप्शन ऑफ वन, एंड दैट इज सिस्टोसोमा ऑफ ब्लड फ्लूक। लिवर फ्लूक के अंदर अब पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं पोस्टीरियर साइड पर, पेयर्ड टेस्टिस विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, और सिंगल ओवरी होती है विच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। एक ही ऑर्गेनिज्म में जब दोनों तरह के गोनेड्स होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। तो अभी इसका स्ट्रक्चर में शुरू करने वाला हूं, और स्ट्रक्चर में आई विल बी मेंशनिंग ऑल द थिंग्स देयर। सो जनरल फीचर्स में जो आपके पास लिवर फ्लूक होता है, दैट इज ए डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट विच इज फाउंड इन द liver and bile duct of the primary host. It is normally found, the adult is found in liver and bile duct of primary host. और कैसे कैसे डिजीज कॉज करेगा, विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स। तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ फैसियोला हेपेटिका, बीइंग प्लेटी हेलमिंथेस डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैसियोला हेपेटिका, इट इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर। तो लेट मी draw a diagram here. On the anterior side there is a region where mouth is present, and then posteriorly it would be something like this. So it is like a leaf here, right? Dorsoventrally flattened leaf like structure. All right, let me make it like this. This is the anterior hood which is present here, and let's say this is the opening which I call mouth. तो जिस तरफ माउथ होगा उसको ओरल एंड भी कहेंगे। तो स्ट्रक्चर में बेटा अगर इसकी लेंथ ऑफ द बॉडी की बात करें, इसका जो लेंथ होता है वो जनरली 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो विड्थ होता है बॉडी का, डेट इज जनरली 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर। एंटीरियर एंड पर एक ओपनिंग रहेगा जिसको बोलेंगे माउथ। इस माउथ के चारों तरफ एक शकर होता है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, एंटीरियर साइड पर एक शकर है और शकर के अंदर एक ओपनिंग भी है। शकर के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको माउथ कहते हैं। तो एंटीरियर एंड पे जो शकर होगा, जिधर माउथ होता है उस एंड को बोलते हैं ओरल एंड। तो इस शकर का नाम हो जाता है बेटा ओरल शकर। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओरल शकर? ये अटैचमेंट के साथ साथ इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। इट इज meant for अटैचमेंट एंड इंजेक्शन। इज दैट क्लियर? देन वेंट्रल साइड पर एक थोड़ा और बड़ा शकर नजर आता है विच वी कॉल वेंट्रल शकर। रिमेंबर दिस वेंट्रल शकर डज नॉट हैव एनी ओपनिंग, तो इट इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर अटैचमेंट, इट इज नॉट मेंट फॉर इंजेक्शन। वेंट्रल शकर के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एसिटाब्यूलम। तो एसिटाब्यूलम और वेंट्रल शकर दैट इज प्रेजेंट ऑन द मिड, टुवर्ड्स द मिड वेंट्रल साइड, और वेंट्रल शकर इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स मिड वेंट्रल साइड, इट इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर अटैचमेंट। तो फैसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक के बॉडी के अंदर दो शकर होते हैं। ओरल शकर इंजेक्शन भी करता है और अटैचमेंट भी करेगा, वो एसिटाबुलम सिर्फ अटैचमेंट करता है, वो इंजेक्शन नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, वी आर हैविंग अनदर ओपनिंग हियर, एंड दिस ओपनिंग बिटवीन एसिटाब्यूलम एंड बिटवीन माउथ, दिस ओपनिंग इज नोन एज जेनाइटल पोर। और जेनाइटल पोर भी नजर आता है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, जेनाइटल पोर। तो अब तक कितनी ओपनिंग आपने पढ़ी? आपने दो ओपनिंग पढ़ी, एक ओरल साइड पर है जो माउथ है, और दूसरा
वेंट्रल साइड पे जो जेनाइटल पोर है, एसिटाबुलम में कोई ओपनिंग नहीं होती है। देन बेटा इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो ब्रांच होता है, तो इंटेस्टाइनल पार्ट और इंटेस्टाइनल कंटेंट वुड बी ब्रांच लाइक दिस। इंटेस्टाइनल सीके आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाके, तो फॉर द मीन टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंटेस्टाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसी पोर से फूड एंटर करेगा और एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इसी पोर से फूड एग्जिट करेगा। So ingestion as well as egestion is shown by a single opening which is mouth. Then on the posterior end there is third true opening present here और इस ओपनिंग का नाम होता है एक्सक्रीटरी पोर। देखो आपको बताया था मैंने कि एक्सक्रीटरी पोर अलग ओपनिंग होती है और एनस अलग ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटरी पोर में जितने भी फ्लेम सेल के सिक्रेशन हैं वो आके पोर आउट होंगे, तो नाइट्रोजन वेस्ट बाहर आता है बाई एक्सक्रीटरी पोर, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है बाय माउथ। अगर कलर की बात करें, ऑन द साइड इट इज पिंकिश, स्लाइटली पिंकिश इन आउटलाइन, और विद दैट पिंकिश कलर इट इज हैविंग सर्टेन डार्क शेड एज वेल। वैसे कलर वगैरह को लेके तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट फेसियोला हेपेटिका कैसा अपीयर करता है, तो यू विल आंसर इट अपीयर पिंकिश इन कलर। तो पिंकिश आउटलाइन विद ब्लू विद डार्क शेड विद ब्लैक और ब्राउन शेड इज देयर, it would be something like this. Should I make black or brown shade? I am having the marker of all colors today, right? Let me make some brown shade here as well. Let's say this is something like this. तो on a revision जो fasciola hepatica होता है वो एक flattened dorsoventral flattened लीफ लाइक होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक, जिसका जो लेंथ है वो अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर है। कई बुक्स में 20 mm के आसपास मेंशन होगा, और विड्थ जो है वो 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर है। 3 ट्रू ओपनिंग होती है, एक माउथ, एक जेनाइटल पोर और एक एक्सक्रीटरी पोर। एसिटाबुलम वेंट्रल शकर है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और जो ओरल शकर है वो अटैचमेंट एज वेल एज इंजेशन एंड इजेशन में हेल्प करता है। ये तो एक नॉर्मल सा डायग्राम हो गया। ऑन द साइड्स दीज आर लेट्स से ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन। अब अगर इसी एक और डायग्राम बना के हेयर इफ आई मेंशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आई वाज टेलिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल, तो लेट्स से दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ ए लिवर फ्लूक। अब इसके अंदर मैं आपको एसिटाबुलम वगैरह नहीं दिखाऊंगा, आई एम जस्ट शोइंग यू अबाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनके पास एंटीरियर साइड पर यहाँ पर होगा ओवरी, ओवरी से अराइज होगा ओविडक्ट, और पोस्टीरियर साइड पर यहाँ होंगे टेस्टिस। एंड हाउ मेनी टेस्टिस आई टोल्ड यू, लेट्स से दिस इज वन टेस्टिस हेयर एंड दिस अदर टेस्टिस हेयर। हर एक टेस्टिस से अराइज होंगे बेटा डक्ट्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दीज डक्ट? दीज डक्ट्स आर नोन एज वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल में ओपन होंगे, वहाँ से इजैकुलेटेड डक्ट अराइज होंगे। इजैकुलेटेड डक्ट इवेंचुअली ओपन हो जाते हैं इनटू ए ओपनिंग। लेट्स से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, दिस ओपनिंग हेयर इज जेनाइटल पोर, तो दीज इजैकुलेटेड डक्ट आर ओपन हेयर इन द जेनाइटल पोर। तो जितने भी स्पर्म्स वगैरह जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है वो इवेंचुअली चले जाते हैं जेनाइटल पोर से बाहर। हम पढ़ेंगे कैसे जाएंगे। देन अगर ओवरीज के बारे में बात करें, यहाँ पर दिस इज अ ओवरी हेयर। ओवरी के बाद आएगा बेटा ओविडक्ट, एक छोटा सा ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो ओपन होता है आके यहाँ पर, ये यूट्रस वाला एरिया है। लेट्स से दिस पार्ट इज द यूट्रस वाला पार्ट, और यूट्रस वाले पार्ट से जो डक्ट ओपन होता है इन द जेनाइटल पोर, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, ये एक्चुअली डेवलप होता है इन द ब्रीडिंग सेशन। और मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ लॉरस कैनाल। लॉरस कैनाल मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट वजाइना ऑफ लिवर फ्लूक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आंसर वुड बी लॉरस कैनाल। ये कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन। हाउ मेनी ओवरीज? सिंगल ओवरी। ओवरी arises from ovary arises from oviduct, and this here is uterus.
तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके पास है बेटा। यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पर जहाँ पूरा यूट्रस होता है और पूरा ये जो वजाइना वाला पार्ट है, ऑल थ्रू द यूट्रस एंड वजाइना द स्पेशल ग्लैंड्स विच आर डेवलप्ड, सम स्पेशल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड हियर एंड दीज ग्लैंड्स आर नोन एज महलिस ग्लैंड। तो जो महलिस ग्लैंड होती है वो लुब्रिकेटिव इन नेचर होती है और वो किसको कवर करती है, कंप्लीट यूट्रस एंड वजाइना। द नेम इज महलिस ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ महलिस ग्लैंड, आप बताएंगे दे आर लुब्रिकेटिव इन फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉरस ग्लैंड, इट एक्ट एज वजाइना। एंड ऑन द साइड्स हियर कुछ वेटेलाइन ग्लैंड भी डेवलप हो जाती है। ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी दे आर सर्टेन वेटेलाइन ग्लैंड और ये यॉक वगैरह प्रोड्यूस करते रहेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग। तो लेट्स से दीज आर द वेटेलाइन ग्लैंड हियर। इस पूरे डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, लेट मी मेंशन हियर। सबसे पहले आपको याद रखना है नंबर ऑफ टेस्टिस, हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट, 2। देन आपको याद रखना है नंबर ऑफ ओवरीज, हाउ मेनी ओवरीज प्रेजेंट, 1। देन आपको याद रखना है लॉरस कैनाल, लॉरस कैनाल इज द अदर नेम ऑफ वजाइना। देन आपको याद रखना है महलिस ग्लैंड, महलिस ग्लैंड इज लुब्रिकेटिव इन फंक्शन, दीज आर लुब्रिकेटिव इन फंक्शन। और ये जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या होगा, यस प्लीज, इट इज जेनाइटल पोर और अदर नेम ऑफ जेनाइटल पोर इज गोनोपोर, अदर नेम ऑफ जेनाइटल पोर इज गोनोपोर। तो आई गेस आई एम डन विद द स्ट्रक्चर हेयर। एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ स्ट्रक्चर का। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, 3 ट्रू ओपनिंग होगी। ओरल साइड पर उनके पास होता है माउथ, देन माउथ और एसिटाबुलम के बीच में होता है जेनाइटल पोर और उसके बाद ऑन द पोस्टीरियर साइड होता है एक्सक्रीटिव पोर। जो ओरल सकर है वो अटैचमेंट में भी हेल्प करता है और फीडिंग में भी हेल्प करता है। जो वेंट्रल सकर है वो काहे में हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट में। देन माउथ से ही इंजेक्शन होता है और इजेक्शन होता है। कई बार ये एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कर लेते हैं, कई बार इनका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी वॉल से भी डिफ्यूज होता है, बट दैट इज रेयर, तो उसको हम ना डिस्कशन करें। अभी एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, फ्लेम सेल है। देन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि भाई ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट एनिमल में 2 केस हो सकते हैं, क्या तो टेस्टिस पहले मैच्योर हो जाए, वो स्पर्म्स पहले बनने लगे, या ओवरीज पहले मैच्योर हो जाए और ओवम बनने पहले लगे, या फिर दोनों एक साथ मैच्योर हो गए। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फर्स्ट, स्पर्मेटोजोआ आर मैच्योर्ड फर्स्ट। ऐसे एनिमल जिसमें स्पर्मेटोजोआ पहले मैच्योर होते हैं, ऐसे हर्माफ्रोडाइट जिसमें स्पर्मेटोजोआ पहले मैच्योर होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्रस। सो जो आपका लिवर फ्लूक होता है वो हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ क्या होता है, दैट इज प्रोटोएंड्रस। और इसके टेस्टिस से जो स्पर्म है दैट वुड बी रिलीज्ड थ्रू दिस गोनोपोर, ये बाहर आने शुरू हो जाएंगे जब ये ब्रीडिंग करेगा। ठीक है बेटा। देन अब एक लिवर फ्लूक के जो स्पर्म है वो दूसरे लिवर फ्लूक के अंदर जाएंगे वाया जेनाइटल पोर। तो ब्रीडिंग के टाइम पे दोनों लिवर फ्लूक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन लिवर फ्लूक, दिस इज अदर लिवर फ्लूक, ये इसका जेनाइटल पोर, ये इसका जेनाइटल पोर, इसके अंदर स्पर्म मैच्योर हो गए हैं। जब जेनाइटल पोर इसके साथ अटैच होगा तो इसके स्पर्म इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। यू गोट माई पॉइंट। अब इसके अंदर भी स्पर्म कैसे गए, वो है जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर से वो कहाँ जाएंगे, दे वुड बी गोइंग टू लॉरस कैनाल, जिसको हमने वजाइना कहा, और वो यूट्रस में चले जाएंगे और इवेंचुअली यूट्रस में जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है या आउटसाइड द बॉडी, यू विल आंसर इट इज इनसाइड द बॉडी। सो व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन लिवर फ्लूक, यू विल आंसर सर फर्टिलाइजेशन इज, यस प्लीज, इट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन है और क्रॉस। 2 लिवर फ्लूक आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं तो दिस इज क्रॉस। इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल, इट इज इंटरनल। तो क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर ब्रीडिंग सेशन के अंदर ही लॉरस कैनाल डेवलप होता है, याद रखना। महलिस ग्लैंड का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन, तो इट हेल्प इन द पैसेज ऑफ ओवम। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लाइफ साइकिल से शुरू करते हैं। ये तो होगा जनरल कैरेक्टर स्ट्रक्चरल फीचर्स लिवर फ्लूक के।
हमारी बुक्स वगैरह में तो इतना ज़्यादा मेंशन ही नहीं किया है, तो सिंपली आपको लीवर फ्लूक को देख के पहचानना है। वैसे लीवर फ्लूक के बॉडी के बाहर ना थोड़े स्पाइंस भी होते हैं, और स्पाइंस भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। लीवर फ्लूक के बॉडी के बाहर थोड़े से स्पाइन या क्यूटिकल भी होते हैं बॉडी के आउटलाइन में, और वो कहे में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कशन करेंगे और वो आप याद रखेंगे। तो लीवर फ्लूक, एडल्ट फ्लूक मिलता कहाँ है? पहले जो एडल्ट फ्लूक है, इट इज फाउंड इन बाइल डक्ट एंड लीवर ऑफ sheep and goat. Is that clear? So let's say you are having an animal here, an animal with how many legs are present there? Please say 4 legs. Don't tell me sir what type of sheep it is, what type of goat it is, right? Just trust me, she is a goat, she is a sheep. Just trust me on that. Let's say she is a sheep. It's really looking very bad. हम इसी को शिप मान के चलते हैं, ठीक है बेटा। तो जो शिप का लीवर होगा, लेट्स से दिस इज द लीवर हियर, और लीवर के यहाँ पर ये गॉल ब्लेडर है, और गॉल ब्लेडर से यहाँ पर ये बाइल डक्ट आ रही है, जो कहाँ पर ओपन होगा? जाके उसके इंटेस्टाइन में। तो जो लीवर फ्लूक है, इट इज सर्वाइविंग आइदर इन द लीवर और इन द बाइल डक्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब लीवर और बाइल डक्ट में क्या कर रहा होगा लीवर फ्लूक, ये बात कर लेते हैं। लीवर और बाइल डक्ट में ये क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रहा होगा, क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना रहा होगा। इस जाइगोट के चारों तरफ कुछ यॉक सेल, यॉक का मतलब होता है बेटा, देखो यॉक जो होता है वो नरिशमेंट का काम करता है। इस जाइगोट के चारों तरफ कुछ यॉक सेल कवर कर लेते हैं, और यॉक सेल का काम यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ साथ नरिशमेंट का भी है। तो इवेंचुअली जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड दैट जाइगोट इज इनकैप्सुलेटेड बाय यॉक सेल। तो मैं इसको कह सकता हूँ इनकैप्सुलेटेड जाइगोट, इनकैप्सुलेटेड जाइगोट। अब इसका फर्दर डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता है, इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए होता है बेटा नियर अबाउट 60% ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है, और नियर एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो बॉडी टेम्परेचर से कम हो। तो ये इनकैप्सुलेटेड जाइगोट है, ये बाइल डक्ट से पहले पहुंचता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वाया फीकल मैटर बॉडी के बाहर आ जाता है। तो दिस इनकैप्सुलेटेड जाइगोट कम्स आउट ऑफ बॉडी। ये कौन सा होस्ट है, प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट? प्लीज आंसर, इट इज प्राइमरी होस्ट। तो इट कम आउट ऑफ बॉडी वाया फीकल मैटर, वाया फीकल मैटर। और जैसे ही ये जाइगोट, अब इसको कंडीशन चाहिए 60% मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 22 to 25 डिग्री। जैसे ही जाइगोट को ये टेम्परेचर मिलता है, जाइगोट डेवलप करना शुरू कर देता है, और जो जाइगोट है वो डेवलप करता है इनटू फर्स्ट लार्वल फॉर्म। अब ये कहां पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है? सब वाटर के अंदर। इट इज डेवलप्ड इनटू फर्स्ट लार्वल फॉर्म। लेट्स से दिस इज द लार्वा हियर, एंड द नेम ऑफ दिस लार्वा, ही इज वेरी हैप्पी, बोथ आइज आर क्लोज, राइट, सो मच हैप्पी। द नेम ऑफ दिस फर्स्ट लार्वा इज Miracidium larva. The name of this first larva is Miracidium larva. तो what I told you कि जब प्राइमरी होस्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर डेवलप नहीं करेगा, वो उस एनिमल के गोनोफोर से बाहर निकल के आएगा, पहले बाइल डक्ट में, वहाँ से पहुँच गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में फीकल रूट के थ्रू आ गया बाहर। जैसी कंडीशन मिली उसने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, और जो पहला लार्वा होता है उसको बोलते हैं मीरासीडियम लार्वा। आप पढ़ोगे कि इसके लाइफ साइकिल में मल्टीपल लार्वाज आते हैं। मीरासीडियम लार्वा जो होता है बेटा, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
सो इसको मैं सिलिएटेड कह सकता हूं, इट इज सिलिएटेड लार्वा। ही इज वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द बॉडी, कि भाई वो शिप के अंदर, लिवर फ्लूक के अंदर टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो कैद था, उसको डेवलप करना था, जिंदगी में कुछ करना था उसे, और अभी वो जो बाउंडेशन है वो खत्म हो गए। तो ही इज फ्रीली स्विमिंग, ही इज वेरी हैप्पी एंड दैट मच हैप्पी ही स्टॉप फीडिंग। तो आप याद रखेंगे सिलिएटेड नॉन फीडिंग लार्वा इज डेवलप्ड एंड द नेम ऑफ लार्वा इज मीरासीडियम लार्वा। आप ये भी याद रख सकते हैं मीरासीडियम लार्वा इसकी लाइफ साइकिल का सबसे एडवांस लार्वा होता है। मीरासीडियम लार्वा के अंदर कुछ नेफीडिया लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन, जबकि नेफीडिया आप पढ़ोगे एनिलिडा में जाके। सो इट्स ए वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ लार्वा, या मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ लार्वा इज मीरासीडियम लार्वा। वेरी हैप्पी, स्विमिंग हियर एंड देयर, एक्टिवली स्विमिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग टू फीड। देन दिस स्विमिंग लार्वा meet someone special. This Meiracidium larva, it meet someone special in water, and who is that someone special? That is secondary host. So this Meiracidium larva enters in body of secondary host, and yes, please tell me who is secondary host? Snail. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है लिवर फ्लूक का कौन सा स्टेज स्नेल को इन्फेक्ट करता है, आप आंसर करेंगे Meiracidium larva. तो लेट्स से फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द बॉडी ऑफ स्नेल हियर, आई हैव एनालाइज्ड द बॉडी ऑफ स्नेल. So which form of larva enters inside the body of snail? Answer is Meiracidium larva. स्नेल के अंदर जाके this Meiracidium would start feeding on the intestine of snail, would start feeding on the content of snail. पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और वहाँ पे फीड करना शुरू कर देगा, और फीड करने के बाद it develops into the most simplest form of larva. It develops into the most simplest form of larva, and name of this most simplest form is sporocyst. तो जैसे ही मीरासीडियम जो मोस्ट एडवांस्ड है वो जाता है इन द बॉडी ऑफ स्नेल और वहाँ पे जाके फीड करना शुरू करता है। अब उसके सीलिया वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं और वो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है डेवलपमेंट में। उस अटेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोसिस्ट। इसका जो मोड ऑफ लिविंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसका मोड ऑफ लिविंग और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये दो अलग अलग लार्वा है। तो फर्स्ट लार्वा विच डेवलप इनसाइड स्नेल इज स्पोरोसिस्ट, सेकेंड लार्वा विच डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक इज स्पोरोसिस्ट। इज दैट क्लियर? फिर ये स्पोरोसिस्ट एंटर करता है इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्नेल और स्पोरोसिस्ट रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। आई रिपीट, लेट्स से दिस इज स्पोरोसिस्ट हेयर, और इन डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ स्नेल इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। और जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, छोटे छोटे एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। तो स्पोरोसिस्ट के अंदर छोटे छोटे एम्ब्रियो बनते हैं। हर एक स्पोरोसिस्ट में 5 से लेके 8 तक एम्ब्रियो बन जाते हैं। आई रिपीट, स्पोरोसिस्ट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, एक लार्वा रिप्रोड्यूस कर रहा है, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट के रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो आई विल बी टेलिंग यू पार्थोजेनेसिस क्या होता है। तो ये लार्वा रिप्रोड्यूस करता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और इसके अंदर छोटे छोटे न्यू एम्ब्रियो बन जाते हैं। ये जो न्यू एम्ब्रियो है इनका नाम होता है रेडिया। और बाद में ये सारे के सारे न्यू एम्ब्रियो रिलीज हो जाते हैं। मैं एक को दिखा रहा हूँ। लेट्स से इट बिकम लार्जर नाउ, अब ये बड़ा हो गया है। रिलीज होने के बाद दे वुड बी ग्रोइंग इन साइज, दे वुड बी अटेनिंग सर्टेन स्ट्रक्चर, अटैचमेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं रेडिया के अंदर जिसको बोलते हैं कॉलर। पर अभी वो याद नहीं रखना है, अभी याद रखना है व्हाट इज योर नेम छोटू, व्हाट इज योर नेम? ही विल आंसर माय नेम इज रेडिया। तो अभी आपने क्या पढ़ा? स्पोरोसिस लार्वा डेवलप्स इनटू रेडिया लार्वा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज स्पोरोसिस्ट विद रेडिया। तो रेडिया लार्वा कहाँ डेवलप हुए? स्पोरोसिस्ट के अंदर। दिस इज ए मैच्योर रेडिया लार्वा, दिस इज मैच्योर रेडिया लार्वा।
आर वी क्लियर अप टू हियर? अभी मैं बताऊंगा कि भाई पार्थोजेनेसिस क्या होता है, इसको पॉली एम्ब्रियोनी क्यों कहते हैं एंड ऑल द थिंग। तो जैसे स्नेल की बॉडी के अंदर एंटर किया, मेरासीडियम कन्वर्ट हो जाता है स्पोरसिस्ट में। स्पोरसिस्ट के अंदर डेवलप होते हैं छोटे छोटे एम्ब्रियो। हर एक एम्ब्रियो जब रिलीज हो जाता है उस लार्वा को बोलते हैं रेडिया लार्वा। इस रेडिया लार्वा के अंदर भी छोटे छोटे एम्ब्रियो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगेन ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग जो स्पोरसिस्ट कर रहा है। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा सर्केरिया। एंड देन सर्केरिया वुड बी रिलीज। तो ये कौन सा लार्वा हो जाएगा यहाँ पर? दिस लार्वा हेयर वुड बी सर्केरिया लार्वा। तो आपने क्या पढ़ा कि मेरासीडियम एंटर किया था इनसाइड स्नेल। मेरासीडियम डेवलप कर जाता है इनटू स्पोरसिस्ट, स्पोरसिस्ट डेवलप करता है इनटू रेडिया और रेडिया डेवलप करता है इनटू सर्केरिया। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, इनसाइड सेकेंडरी होस्ट मेरासीडियम डेवलप इनटू स्पोरसिस्ट, स्पोरसिस्ट वुड डेवलप इनटू रेडिया एंड रेडिया वुड डेवलप इनटू सर्केरिया। अब अगर हम स्पोरसिस्ट की बात करें बेटा, स्पोरसिस्ट के अंदर खूब सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं और रेडिया के अंदर भी खूब सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, पॉली एम्ब्रियोनी इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक इज शोन बाय, आप बताएंगे मुझे कौन कौन से लार्वा पॉली एम्ब्रियोनी शो कर रहा है? क्या मेरासीडियम पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है? आंसर इज नो। क्या स्पोरसिस पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है? आंसर इज यस। तो इट इज शोन बाय स्पोरसिस लार्वा। क्या रेडिया पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है? आंसर इज यस एंड रेडिया लार्वा। ठीक है बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी शोन बाय स्पोरसिस लार्वा एंड रेडिया लार्वा। अब इट इज लाइक सी, अगर हम इसको थोड़ा सा और उसमें फनी वे में याद रखें, ही इज द वन जो अभी फ्री हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उसको समवन स्पेशल मिलता है। समवन स्पेशल कौन है? स्नेल। वो स्नेल की बॉडी के अंदर जाता है। स्नेल की बॉडी के अंदर जाके उसकी जितनी भी खराब आदतें हैं वो सब छोड़ देता है। वो बहुत ही सिंपल बन जाता है। सिंपलेस्ट लार्वा इन द लाइफ साइकिल इज स्पोरसिस्ट। देन दे गॉट मैरिड, दे स्टार्ट मेकिंग बेबीज। जो इनिशियल बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनका नाम होता है रेडिया। और कैसी शो करते हैं स्टेज? पॉली एम्ब्रियोनी। रेडिया भी उसी चीज़ को रिपीट करता है और न्यू बेबी बनाता है जिसको बोलते हैं सर्केरिया। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? एक और चीज़, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। इस इवेंट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक कंडीशन ये होती है जब फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट डेवलप कर दें। जब फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट डेवलप करके एडल्ट डेवलप करना शुरू कर दें, इस स्टेज को बोलते हैं, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस। सो जो पार्थेनोजेनेसिस है उसका दूसरा नाम होता है वर्जिन, कहते हैं क्योंकि मेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। विदाउट एनी कॉइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स बेबीज आर प्रोड्यूस्ड। तो पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट और एग into adult without being fertilized by male. Is that clear? अब स्पोरसिस लार्वा के अंदर भी न्यू बेबीज बन रहे हैं और रेडिया लार्वा के अंदर भी न्यू बेबीज बन रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस कौन कौन शो करेगा? नेक्स्ट पॉइंट, पार्थेनोजेनेसिस is shown by again you will answer sporocyst and radia। ठीक है बेटा। अब जो पार्थेनोजेनेसिस ये मैं बताया, ये आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बताया कि एडल्ट्स के अंदर पार्थेनोजेनेसिस होते हैं। एडल्ट है, अपने गैमेट बना रहे हैं और पार्थेनोजेनेसिस कर रहे हैं। जब पार्थेनोजेनेसिस लार्वा के अंदर होती है, तो उस पार्थेनोजेनेसिस को बोलते हैं बेटा पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। उस पार्थेनोजेनेसिस के लिए वर्ड यूज करते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। सो विच पार्थेनोजेनेसिस इज हियर? इट इज पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस।
तो आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल, पॉली एम्ब्रियोनी कौन कौन शो करता है इन देयर लाइफ साइकिल, आप आंसर करेंगे स्पोसिस्ट एंड रेडिया। पीडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस, और सिंपली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पीडोजेनेसिस, सिंपली उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पीडोजेनेसिस। वो कौन कौन शो करता है, आंसर वुड बी स्पोसिस्ट एंड रेडिया। Is that clear? These 2 points are really very important. You will be having question upon these 2 points. Come back to the story. So Meacidium infective stage for secondary host is Meacidium larva. Infective stage for secondary host. Which marker I should use here? Infective stage for secondary host. Answer is Meacidium larva. अब ये जो सर्केरिया लार्वा होता है बेटा, इट कम आउटसाइड द बॉडी, इट कम आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्नेल। हु हैज कम आउटसाइड? यस, व्हाट इज योर नेम? हिज नेम इज सर्केरिया। गॉट ए ब्रेकअप, पहले बड़ी खुशी खुशी साथ में उन्होंने शादी वगैरह किया, नाउ दे गॉट ए ब्रेकअप। दिस सर्केरिया आफ्टर, अच्छा ये जो इमर्जिंग ऑफ सर्केरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समर सेशन में रेडिया बनते रहते हैं, और रेडिया से सर्केरिया मेनली विंटर सेशन में बनता है। रेडिया से सर्केरिया मेनली विंटर सेशन में बनेगा। अगर समर सेशन है तो रेडिया से रेडिया ही बनते चले जाएंगे वो। तो जब विंटर सेशन होता है और जब सिचुएशन 9 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, जब टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड है, तो ही सर्केरिया लार्वा बाहर आता है स्नेल की बॉडी से, और स्नेल की बॉडी से बाहर आके ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, ही गॉट ए ब्रेकअप एंड ही, ऐसा होता है ना कि आप बहुत परेशान हो, अकेले रह गए हो, तो आपने एक प्रोटेक्शन के लिए ब्लैंकेट लिया क्योंकि सर्दी का मौसम है, और आप आराम से कहीं बैठ गए हो, आप नॉन मोटाइल हो गए, घूमना फिरना बंद कर दिया आपने। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कवर लगा लेते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं सिस्टेशन। तो इस लार्वा को मैं बोलूँगा एंसिस्टेड लार्वा। तो सर्केरिया जो है वो अपने चारों तरफ कुछ, दिस सर्केरिया हेयर द कलर वाज ग्रीन एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी, देयर आर सो मच टीयर्स व्हिच हैज बीन कमिंग आउटसाइड, एंड दिस सर्केरिया इज हैविंग अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर इट। तो आई कैन कॉल इट एंसिस्टेड लार्वा, आई कैन कॉल इट एंसिस्टेड लार्वा। देखो मेटा, जो आपने मीरासीडियम पढ़ा था उसके लिए वर्ड यूज किया था मैंने, नॉन फीडिंग एंड सिलिएटेड लार्वा। दिस इज एंसिस्टेड लार्वा एंड द नेम इज मेटासर्केरिया, द नेम इज मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया इज एंसिस्टेड और इट इज एंसिस्टेड, इट इज नॉन मोटाइल, इट इज नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल कैसे हुआ ये जाके अटैच हो जाता है टू द प्लांट आउटग्रोथ नियर टू द वाटर। जो भी पॉन्ड वगैरह के पास जितने भी प्लांट वीड होगा, लेट्स से ये प्लांट वीड है, वीड तो समझते हैं ना आप, दिस इज ए प्लांट वीड, सो ये अटैच हो जाता है टू द प्लांट वीड हियर। कम बैक टू द स्टोरी, अ क्विक रिवीजन, व्हाट इट इज प्लांट वीड। तो कहानी शुरू हुई थी, सबसे पहले आया था मीरासीडियम लार्वा, वो गया इस स्नेल की बॉडी में, स्पोसिस्ट बना, स्पोसिस्ट से बना रेडिया, कौन से प्रोसेस से? पेडोजेनेटिक पाथोजेनेसिस से। रेडिया से बना सर्केरिया, कौन से प्रोसेस से? पेडोजेनेटिक पाथोजेनेसिस से। क्योंकि स्पोसिस्ट और रेडिया के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो भी नजर आते हैं, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब सर्केरिया बॉडी के बाहर आ जाता है वापस वाटर में और इनएक्टिव हो जाता है विद फॉर्मिंग ए सिस्ट, उसको बोलते हैं मेटासर्केरिया लार्वा, और ये अटैच है टू द प्लांट वीड। अब एक भोली भाली शिप, नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब एक भोली भाली शिप आएगी और ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है इट वुड बी फीड बाय दैट भोली भाली शिप। जो शिप या गोट थी वो कहाँ पे फीड कर रही है? प्लांट वीड के ऊपर फीड कर रही है, और उस प्लांट वीड के अंदर क्या है? मेटासर्केरिया लार्वा है। तो प्राइमरी होस्ट के अंदर ये लार्वा किस फॉर्म में एंटर करता है, या प्राइमरी होस्ट के अंदर लीवर फ्लू किस फॉर्म में एंटर करता है? आंसर शुड बी यस प्लीज, मेटासर्केरिया। सेकेंडरी होस्ट के अंदर किस फॉर्म में एंटर किया था? आंसर वाज मीरासीडियम। तो विच इज इन्फेक्टिव स्टेज टू प्राइमरी होस्ट, इन्फेक्टिव स्टेज टू प्राइमरी होस्ट,
आंसर इज मेटासर्केरिया। इन्फेक्टिव स्टेज टू सेकेंडरी होस्ट, आंसर इज मेयासीडियम। अब प्राइमरी होस्ट के अंदर जाके जैसे ही उसके लीवर बाइल डक्ट में जाएगा वो एडल्ट बन जाएगा और दोबारा लाइफ साइकिल करना शुरू कर देगा। तो ये प्राइमरी होस्ट ही इन्फेक्ट हो गया। आर वी डन अप टू हियर? So total how many larvas are there? Yes please, this is number 1, this is number 2, this is number 3, number 4, number 5। चीज़ें थोड़ी डिटेल में हो गई तो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, तो आप पहले तो ये ड्रॉ कर लेंगे अपने नोटबुक पर। अब इसका एक सिंपल सा वर्जन बता देता हूँ आपको, इसका एक सिंपल सा वर्जन बना देता हूँ मैं, राइट? कि लाइफ साइकिल में कौन कौन से लार्वा होंगे, कौन सा प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, कौन सा सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, और कौन सा पीडोजेनेसिस शो करेगा, कौन सा पॉलीएम्ब्रियोनी शो करेगा। लेट अस ऑल गोट दीज डाटा ऑन आवर बोर्ड। तो 5 लार्वा है, 5 लार्वास। अ इजी वे टू रिमेंबर इज माई स्पोर्ट्स रेड color. You like Maruti or Mercedes? I to like Mercedes here. So we'll be writing these things like this. पहला लार्वा कौन सा था? Yes please. Miracidium, the most advanced. It is most advanced. It is ciliated. It is non-feeding. तीनों करेक्टर वहां बता चुका हूं मैं। चौथा इसके लिए फीचर होगा इट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट। तो M4 माई, M4 मियासीडियम। सेकेंड लार्वा है आपके पास स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। थर्ड लार्वा इज रेडिया, रेड स्टैंड फॉर रेडिया लार्वा। इन दोनों के बारे में 2 चीजें कॉमन है, दोनों ही पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं, दोनों ही पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं, और दोनों ही पीडोजेनेटिक पाथोजेनेसिस करते हैं, पीडोजेनेसिस करते हैं। पीडोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे पीडोजेनेटिक पाथोजेनेसिस ही है, याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट लार्वा कौन सा आना चाहिए? कलर, कलर स्टैंड फॉर सर्केरिया। सर्केरिया के बारे में क्या बात स्पेशल है कि स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। स्नेल की बॉडी में कौन एंटर करता है? मियासीडियम। स्नेल की बॉडी से कौन बाहर आता है? सर्केरिया। स्पोरोसिस्ट और रेडिया कहाँ डेवलप करते हैं? स्नेल की बॉडी में। इवन सर्केरिया भी डेवलप करता है स्नेल की बॉडी में, और वो वहाँ डेवलप करके तब बाहर आता है। सर्केरिया कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटा सर्केरिया। तो मर्सिडीज और मारुतिज मेटा सर्केरिया। इसके बारे में क्या बात स्पेशल है? ये एंसिस्टेड होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज टू प्राइमरी होस्ट होता है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या है? शीप एंड गोट। तो बच्चे ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ लीवर फ्लूक के बारे में। इज दैट क्लियर? अब लीवर रॉट में क्या क्या होता है वो बता देता हूँ, और फिर जो ह्यूमन वाले फ्लूक है उनके कुछ नाम बता देता हूँ, ठीक है बेटा? अब जो प्राइमरी होस्ट होगा वो चाहे शिप है या वो चाहे गोट है, वो सफ़र करता है फ्रॉम लीवर रोट। जो लीवर फ्लूक बीमारी करता है इन शिप एंड गोट उसको बोलते हैं लीवर रोट। लीवर रोट में उसको एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। देन लीवर के जो है वो मेंशन कर देता हूँ, एक वर्ड होता है सिरोसिस, और सिरोसिस का मतलब होता है सिरोसिस, सिरोसिस का मतलब होता है बेटा डैमेज लीवर। तो शिप या गोट का लीवर डैमेज हो जाएगा, बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, और इन दोनों चीज़ की वजह से एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन हो जाता है। देन ऐसे शिप डायरिया से भी सफ़र करते हैं, दे सफ़र फ्रॉम डायरिया एज वेल। तो ये 4 प्रोमिनेंट सिम्टम मिलेंगे आपको प्राइमरी होस्ट शिप या गोट के अंदर। ये बच्चे हो गए लीवर फ्लूक के बारे में। देन कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन फ्लूक। लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन फ्लूक, और उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइनल फ्लूक। क्या कोई फैसियोला हेपेटिका जैसा ही ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है? आंसर इज यस, द नेम इज ह्यूमन इंटेस्टाइनल फ्लूक और फैसिलोप्सिस
बस्काई और साइंटिफिक नेम इज फैसिलोप्सिस बस्काई। एक तो ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, एक और होता है जिसको ओरिएंटल फ्लूक या चाइनीज फ्लूक भी कहते हैं। सेकंड नेम जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है डेट इज ओरिएंटल फ्लूक और चाइनीज फ्लूक। ठीक है, Opisthoorchis इज द साइंटिफिक जीनस नेम ऑफ ओरिएंटल फ्लूक और चाइनीज फ्लूक। सो द नेम गोज Opisthoorchis sinensis। तो ये दो कॉमन फ्लूक हैं जो आपका इन्फेक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस को। ये दोनों डाइजेनेटिक होते हैं। इनके केस में जो सेकेंडरी होस्ट होता है, इट कुड बी ए फिश और इट कुड बी ए स्नेल। इवन इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूक, फिश इज आल्सो रिगार्डेड एज सेकेंडरी होस्ट। तो जो लोग फिश वगैरह खाते हैं उनको जनरली इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। इनके जो इन्फेक्शन होगा उसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, द साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस इन्फेक्शन, it would be starting from epigastric pain. First let me mention here epigastric pain। गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो स्टमक के लिए यूज होता है, तो सिंपली एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन भी कह सकते हैं। देन ब्लड सेल का नंबर कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट इज डैमेजिंग योर ब्लड सेल, वी कॉल दैट एनीमिया। पेशेंट को फीवर आना शुरू हो जाता है, एक एलर्जी टाइप कंडीशन डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ईसनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। तो ईसनोफिलिया इज जनरली शोन इन द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूक एज वेल एज चाइनीज फ्लूक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंट का डायरिया होना शुरू हो जाएगा और डायरिया की सिचुएशन में, डायरिया इज समथिंग लाइक फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फीकल मैटर। डायरिया के साथ साथ उसका लीवर डैमेज हो जाएगा जिसको बोलते हैं सिरोसिस। लीवर डैमेज और सिरोसिस इज देयर। आपसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि भाई इंटेस्टाइनल फ्लूक क्या क्या सिम्टम लेके आ रहे हैं। जब टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो लेट मी टेल यू फ्यू सिम्टम्स हियर। तो क्या ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है? आंसर इज यस। देन एक और चीज़ आई विल लव टू ऐड हियर कि ये जो फ्लूक्स हैं ये आपके कैटल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इवन काउ एंड बुफेलो इज इन्फेक्टेड। फेसियोला जंगिटिका और फेसियोला इंडिका इज कॉमनली नोन एज कैटल फ्लूक। इट इज नॉट नोन एज दैट liver fluke. Other name or other example of fluke later discuss is cattle fluke. Cattle fluke में प्राइमरी होस्ट कैटल हो जाता है विच इज मोर कॉमनली अ काउ और बुफेलो। सेकेंडरी होस्ट अभी भी स्नेल रहता है। कैटल फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम होगा डेट इज, यस प्लीज, फैसियोला जैंगिटिका और सिंपली इसको फैसियोला इंडिका भी कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। तो लीवर फ्लूक के साथ साथ आई टोल्ड यू अबाउट दोज फ्लूक विच आर इन्फेक्टिंग ह्यूमन एंड दोज फ्लूक विच आर इन्फेक्टिंग कैटल्स। देन एक और बचता है आपका फ्लूक जो आपको ना, मैं आपको बताया था कि सारे के सारे जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ वन एनिमल एंड दैट एनिमल इज सिस्टोसोमा और ब्लड फ्लूक। तो ब्लड फ्लूक के बारे में दो चार बातें बता देता हूँ। बर्ड फ्लूक के बारे में भी दो चार बातें ऐड कर देते हैं कि ब्लड फ्लूक को लेके भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। जो ब्लड फ्लूक होगा बेटा, द नेम इज सिस्टोसोमा, उसके भी दो होस्ट होंगे, प्राइमरी ह्यूमन होगा और सेकेंडरी कौन हो जाएगा? स्नेल। तो सिस्टोसोमा जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इन एनिमल को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ नाम लिख के निकल जाएंगे, ठीक है। इट इज कॉमनली नोन एज ब्लड फ्लूक। इसके फीचर्स की बात करें, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक में प्राइमरी होस्ट कौन हो गया? ह्यूमन। द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है दैट इज स्नेल। सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। देन इसके बारे में याद रखना, दिस इज द ओनली वन विच इज हैविंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इट इज द ओनली वन जिसके अंदर
सेपरेट रहते हैं और मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। अब देखो मैं पूरा कंसेप्ट ही बता देता हूँ जब शुरू किया है। लेट्स से दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लूक हेयर एंड विच फ्लूक इट इज सिस्टोसोमा, और ये मेल सिस्टोसोमा में बता रहा हूँ, दिस इज मेल हेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक शक्ल होगा जिसका नाम तुमने रखा ओरल शक्ल, इसके अंदर माउथ भी होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या है, ये एसिटाब्यूलम है, दिस इज एसिटाब्यूलम, वेंट्रल शक्ल। ठीक है बेटा। अब जब फीमेल को बनाना शुरू करेंगे, लेट यू मेंशन फीमेल हेयर, इसके ना बॉडी के अंदर एक कैनाल होता है, इस कैनाल का नाम होता है गाइनेकोफोरिक कैनाल। इसके बॉडी के अंदर, मेल के बॉडी के अंदर एक कैनाल होता है जिसका नाम होता है गाइनेकोफोरिक कैनाल, और जो फीमेल है वो मेल की गाइनेकोफोरिक कैनाल में रहती है, फीमेल मेल की गाइनेकोफोरिक कैनाल में रहती है। तो फीमेल को थोड़ा ना बाहर निकाल के दिखा देते हैं। लेट्स से दिस इज द फीमेल हेयर, ये फीमेल का ओरल शक्ल, ये फीमेल का वेंट्रल शक्ल एसिटाब्यूलम, एंड आई एम मेकिंग फीमेल समथिंग लाइक दिस। ये रह तो रही है गाइनेकोफोरिक कैनाल में, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखा दिया है। ये इसका ओरल शक्ल है और ये इसका एसिटाब्यूलम है। ठीक है बेटा। तो जो सिस्टोसोमा होता है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है उसमें। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो है मेल के बॉडी से अलग हो जाती है। कहाँ रहता है ये? जनरली इन द लीवर पार्ट, इन द बाइल डक्ट पार्ट एंड इन द मेसेंट्रिक वेसल्स। ये मेनली कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल वेसल, और इट इज फाउंड इन मेसेंट्रिक ब्लड वेसल। मेसेंट्रिक ब्लड वेसल वो होती हैं जो आपकी एब्डोमेन के साइड साइड में ब्लड वेसल जा रही हैं। मेसेंट्रोन का मतलब होता है बेटा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो आपका जितना भी इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज, इन सबको जो कवर कर रहा है वो मेसेंट्रोन है, और जो वहाँ की ब्लड वेसल होगी मेसेंट्रिक ब्लड वेसल होगी। तो मेनली ये हेपेटिक पोर्टल वेसल में मिलता है और मेसेंट्रिक ब्लड वेसल में मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले तो फीमेल मेल के अंदर रह रही है, और फर्टिलाइजेशन के बाद शी लीव्स द बॉडी ऑफ मेल, और वो ब्लड वेसल में आ जाती है, वहाँ पे एग ले करना शुरू कर देती है। शी हाउ मीन शी इज, राइट, ओके। देन इसकी भी लाइफ साइकिल में सेम वही होगा, इसके अंदर मीरासीडियम लार्वा आएगा, देन इसके अंदर ये वहाँ से जो है ये स्नेल की बॉडी में चला जाता है, मेल की बॉडी से बाहर आएगा वाया फीकल मैटर, स्नेल की बॉडी में कुछ लार्वा डेवलप करेंगे एंड ऑल द थिंग। इसमें कुछ लार्वा नहीं होते हैं, उसके अंदर 5 लार्वा है, इसके अंदर 3 लार्वा है। आई विल बी डिस्कसिंग डेट लेटर ऑन। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप बस ये याद रख लें कि ये जो बीमारी कॉज करता है, डिजीज का नाम होता है बिलहार्जिया, और इसका दूसरा नाम होता है सिस्टिसोमियासिस। तो बिलहार्जिया और सिस्टिसोमियासिस इज कॉज्ड बाय सिस्टोसोमा। बिलहार्जिया और सिस्टिसोमियासिस इज कॉज्ड बाय सिस्टोसोमा। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज, इट इज़ वेरी कॉमन लाइक दैट ऑफ लीवर इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर भी पेशेंट को डायरिया होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को एनीमिया होना शुरू हो जाता है। तो डायरिया वो कंडीशन होती है जब फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ फीकल मैटर होता है, एनीमिया वो कंडीशन होती है जब ब्लड सेल का नंबर कम हो जाता है। एक और चीज़ होती है इसमें, उसको बोलते हैं हेपेटोमेगैली। हेपेटोमेगैली का मतलब होता है लीवर का बढ़ जाना, एनलार्ज लीवर, और स्प्लीन का बढ़ जाना, स्प्लीन का बड़ा हो जाना इज स्प्लेनोमेगैली। तो एनलार्ज लिवर एंड एनलार्ज स्प्लीन इज आल्सो रिपोर्टेड इन केस ऑफ बिलहार्जिया और सिस्टोसोमियासिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, patient would be suffering from fever and patients would be suffering from pain. So that is about certain flukes which are commonly infecting animals. इस लेक्चर में जो मेजर हमें पढ़ना था डेट वाज लीवर फ्लूक, और हमने लीवर फ्लूक का स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल पढ़ ली और 5 लार्वा पढ़ ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आई टोल्ड यू कि कौन से आपके इंटेस्टाइनल फ्लूक होते हैं, कौन सा कैटल फ्लूक होता है, और कौन से को आप ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।
इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट टेप वॉर्म। तो एक लिवर फ्लूक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कुछ वॉर्म्स को भी पढ़ेंगे। तो टेप वॉर्म में टीनिया सोलियम के साथ साथ कुछ और वॉर्म आपको बताना शुरू कर दूंगा मैं कि भाई इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस क्या क्या होता है। देन टीनिया सोलियम तो पॉक टेप वॉर्म है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दैट कैटल टेप वॉर्म, ह्यूमन को कौन सा टेप वॉर्म इन्फेक्ट करेगा, एंड ऑल द थिंग्स। सो स्टूडेंट यू गो थ्रू दिस। आपका 11th को जो पेपर है तो प्लीज़ उस सिलेबस को पढ़ते रहें और साइड बाय साइड अगर टाइम मिले तो इसको देख लेना, अदरवाइज 11th के बाद इसको देख लेना। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई WhatsApp. So this is all for this lecture. The class is dismissed. Thank you.